میرا بچپن پرسکون ماحول میں گزرا۔ والد صاحب مالی لحاظ سے مضبوط تھے، سو رشتہ داروں میں ہمارے گھرانے کی عزت تھی۔ امی کو بھی خاندان والے سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ سچ ہے دن سدا ایک سے نہیں رہتے۔ جو ہی میں نے گریجویشن مکمل کی، حالات نے پلٹا کھایا۔ والد صاحب اپنی زندگی کی مہلت پوری کر چکے تھے۔ وہ وہاں چلے گئے کہ جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں لوٹتا۔ میری منگنی فرحان سے ہو چکی تھی۔ چچا جان سے ابو نے وعدہ کیا تھا، دردانہ تعلیم مکمل کر لے تو میں اسے رخصت کر دوں گا۔ جب مجھے رخصت کرنے والا ہی رخصت ہو گیا تو کون دعاؤں کی چھاؤں میں میری ڈولی روانہ کرتا۔ امی نے حالات سنبھلنے تک شادی کی تاریخ دینے سے معذرت کر لی۔ یوں میری فرحان سے شادی ملتوی ہو گئی۔ ہم 2 ہی بہنیں تھیں۔ تابندہ مجھ سے 3 برس چھوٹی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی مگر بدقسمتی سے نابینا تھی۔ تبھی ہم سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ والد صاحب نے اسے خصوصی بچوں کے اسکول میں تعلیم دلوائی تھی۔ وہ میٹرک پاس کر چکی تھی کہ ابو وفات پا گئے۔ ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ چچا نے والدہ سے کہا کہ دردانہ کی شادی فرحان سے کرا دو، میں آپ کے گھر کا خرچہ اٹھا لوں گا، اسے نوکری کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں نے یہ گوارا نہ کیا۔ والدہ سے کہا چچا جان سے 2 سال کی مہلت مانگ لیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ جب تک تابندہ کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل جاتا۔ تابندہ نابینا ہے بیٹی، آج کل آنکھوں والی لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں ملتے، تو جو دید سے محروم ہے اسے بیانے کون آئے گا۔ تم ایسی بات نہ کرو کہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ فرحان مجھے بہت چاہتا تھا، میں بھی اپنے بچپن کے منگیتر کو پسند کرتی تھی۔ جب فرحان نے سنا کہ میں ملازمت پر بضد ہوں تو افسردہ ہو گیا، لیکن والدین سے کہا کہ دردانہ کی خوشی اسی میں ہے تو آپ اس کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے 2 سال کی مہلت دے دیں اور اسے ملازمت کرنے دیں۔ ایک سہیلی کے توسط سے، جس کے والد اعلیٰ افسر تھے، مجھے بینک میں ملازمت مل گئی اور میں تندہی سے اپنے فرائض انجام دینے لگی۔ کوشش تھی کہ والدہ اور بہن کو ابو کی کمی محسوس نہ ہونے دوں، انہیں پہلے کی طرح ضرورت کی ہر شے میسر رہے۔ ان دنوں اپنے پیاروں کو سکھ پہنچانے کے جذبے نے مجھ سے مستقبل کی خوشیوں بھری سوچیں بھی چھین لی تھی۔ والدہ اور تابندہ دونوں ہی بے حد غمگین رہنے لگی تھیں۔ میں ان کے چہروں پر پھر سے وہی مسکراہٹ سجی دیکھنا چاہتی تھی جو ابو کی زندگی میں ان کے چہروں کی رونق ہوا کرتی تھی۔ انہیں خوش دیکھنے کے سوا میرے دل میں کوئی آرزو باقی نہیں رہی تھی۔ دفتر میں میرے ساتھ بہت اچھے لوگ کام کرتے تھے۔ انہوں نے کافی تعاون کیا کیونکہ شروع میں دفتری امور سر انجام دینے میں دقت محسوس کرتی تھی۔ سبھی نے مدد کی۔ اپنے آفس میں ہم اس طرح وقت گزارتے تھے جیسے ایک ہی فیملی کے فرد ہوں۔ میں ان کا احترام کرتی اور وہ مجھے عزت دیتے تھے۔ ہمارے باس بہت اچھے اور با اخلاق انسان تھے، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھتے تھے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا مدد کرنے پر آمادہ رہتے۔ غرض اس دفتر کی ملازمت مجھے اتنی راس آ گئی کہ اب چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا سارا دھیان ملازمت کی طرف تھا، جبکہ فرحان کا تمام تر دھیان مجھ پر تھا۔ وہ روزانہ ہمارے گھر آ جاتا مگر میں مصروفیت کے باعث اسے وقت نہ دے پاتی۔ وہ امی اور تابندہ سے باتیں کر کے چلا جاتا تھا۔ پہلے جب بھی وہ آتا میں خوب اس کے ساتھ باتیں کرتی، چائے بنا کر لاتی، کبھی کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرتی، مگر اب میری مجبوری تھی کہ آفس وقت پر جانا ہوتا تھا۔ جب لوٹتی تھکی ہوئی ہوتی تو اس کے ساتھ رسمی سلام دعا کر کے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی۔ وہ میری مجبوری سمجھتا تھا، لہٰذا برا نہ مانتا۔ وہ غالباً مجھے ایک نظر دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تبھی میرے وقت نہ دینے کے باوجود اس نے ہمارے گھر آنا ترک نہ کیا۔ نابینا ہونے کے سبب سبھی تابندہ کو نظر انداز کرتے تھے مگر فرحان ایسا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے مجھے اس پر فخر تھا کہ میرا ہونے والا شریک زندگی اعلیٰ اقدار کا حامل ہے۔ وہ میری دید سے محروم بہن کو توجہ دیتا، جس سے وہ خوش رہنے لگی تھی۔ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا کہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ گھر میں اس کے ساتھ کوئی گپ شپ کرنے والا نہ تھا۔ ادھر میرے جاب کر لینے کے بعد تابندہ تنہائی محسوس کرتی۔ ایسے میں فرحان کا اس کے ساتھ گپ شپ کر لینا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ امی تابندہ کو خوش دیکھ کر خوش رہنے لگی کیونکہ ابو ہی ایک ایسے فرد تھے جو تابندہ کو اندھیری دنیا سے نکال لیتے تھے، اس کے ساتھ باتیں کرتے اور دنیا بھر کی معلومات اسے دیا کرتے تھے۔ فرحان نے ان کی کمی کو پورا کر دیا۔ اسے روتوں کو ہنسانے میں ملکہ حاصل تھا۔ تابندہ روز شام کو اس کا انتظار کرتی تھی۔ ان دنوں فرحان کو ملازمت نہ ملی تھی، اس کے پاس وقت ہی وقت تھا۔
ताहम वो जॉब के लिए कोशिश कर रहा था। बिलाखिर कोशिश रंग लाई और उसे भी बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई। उसने MBA किया हुआ था। फरहान की नौकरी लगी तो एक बार फिर चचा और चची उसका घर आबाद करने को बेकरार हो गए। अम्मी से कहा कि दुर्दाना ने अगर मुलाजमत जारी रखनी है तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अब मज़ीद इंतज़ार ना करवाइए और शादी की तारीख रखिए। अम्मी तो दिल से यही चाहती थी, लेकिन मैं ही टेढ़ी लकीर बनी हुई थी। खुदा जाने क्यों दूर अंदेशी से काम लेने की बजाय शादी के मामले में गैर संजीदा हो गई थी। दिल गवाही देता था कि फरहान तुम्हारा है, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाएगी। थोड़ा सा और काम कर लो, कुछ रकम जोड़ लो, बाद में जाने क्या हालात हों। नौकरी छोड़नी पड़ जाए तो इतनी अच्छी नौकरी फिर कब दोबारा मिलेगी। बुजुर्ग कहते हैं ना कि हमने धूप में बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं किए। वाकई वो सही कहते हैं। हम नौ उम्र लोगों की कच्ची उम्रों में सोचें भी कच्ची होती हैं। हम क्या जाने दूरंदेशी क्या होती है। अम्मी समझा समझा कर थक गईं, मगर मेरी एक ही रट थी, अम्मी जान मैं और फरहान कहीं भागे नहीं जा रहे। 2 साल की मुद्दत पूरी होने दीजिए, मेरी तरक्की हो जाएगी, फिर कर लेंगे शादी। बेचारी अम्मी इधर मेरी दलीलों से पसपसा हो जाती तो उधर चचा और चची उन पर चढ़ाई करते कि आखिर कब तक मुंह में घुंघियां डाले बैठी रहोगी, हम जल्द अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं और आप हैं कि टाल मटोल से काम लेती हैं। अम्मी मुझसे जब भी बात करना चाहती मैं कह देती, अम्मी क्या इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दूं? आप देख लेना, बहू बनाते ही सबसे पहले चचा और चची मेरी नौकरी छुड़ाएंगे। माँ मेरा मुंह तकने लगती। दुर्दाना सब्र की भी एक हद होती है, मैं कब तक टाल मटोल से काम लेती रहूँगी। अच्छा फरहान आएगा, मैं खुद इससे बात कर लूँगी। वो कई बार आया, बात ना कर सकी, कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ रहने लगी थी। मेरी कारकर्दगी इस कदर अच्छी थी कि मेरे हमाक को देखकर वो काम भी बॉस मेरे ज़िम्मे लगा देते जो दूसरे नहीं करते थे। यूँ मैं उनकी नज़रों में रोज़ बरोज़ तौकीर पाती गई। फिर तो जैसे दुनिया से ही कट गई। ये भी भूल गई कि मेरा मंगेतर हर वक्त मेरा मुंतज़िर रहता है, मुझसे मिलने बातचीत करने घर आता है और बग़ैर मिले बात किए चला जाता है। ताबिंदा उसे तवज्जो ना देती तो शायद मायूस होकर हमारे घर आना ही बंद कर देता, लेकिन वो क्यों ना तवज्जो देती, क्योंकि वो बेचारी तो खुद किसी की तवज्जो की मुंतज़िर, किसी से बात करने को तरसती थी। जब चचा चची ने उसे अल्टीमेटम दे दिया कि अब तुम अपनी ताई से आखिरी जवाब लेकर आओ, तो वो कई बार मुझसे मिलने आया, मगर उसके साथ मुलाकात ना हो सकी। आखिरकार मेरी लापरवाही का कुछ तो नतीजा निकलना ही था। वो अरसे से आ रहा था, लेकिन मेरी उससे मुलाकात नहीं होती थी। इत्तफाक से एक शाम जल्दी घर आ गई। देखा वो और ताबिंदा दुनिया और माफिया से बेखबर महवे गुफ्तगू हैं। उन्हें मेरी आमद का भी एहसास ना हुआ। फरहान ने मेरी सिम देखा ज़रूर, मगर नोटिस नहीं लिया। मुझे लगा जैसे उसे अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। ताहम मैंने उसे अपना वहम समझा और अपने कमरे में चली गई। मुंह हाथ धोकर और कपड़े बदल कर आई तो उन दोनों के पास बैठ गई। दिल ने कहा आज तो तवज्जो दे दूं, कब से मसरूफियत का नकाब ओढ़ रखा है। किसी को नज़रअंदाज करने की भी आखिर एक हद होती है। अज खुद मैंने फरहान से बातें शुरू कर दी। वो खुश हो गया और खुश दिली से बातचीत करने लगा। किसी किस्म का कोई गिला ना किया। मैंने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, कहीं बाहर सैर को नहीं निकले। दफ्तरी मसरूफियत से थक गई हूँ, जी चाहता है कहीं बाहर घूमने फिरने को जाएं। ताबिंदा चहक उठी। हाँ बाजी क्यों नहीं, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। जब से अब्बू गए हैं मैंने तो घर से कदम भी बाहर नहीं निकाला है, ना कोई मुझे कहीं सैर को लेकर गया है। जी चाहता है किसी अच्छी सी जगह जाएं। क्यों फरहान? मैंने उम्मीद भरी नज़रों से फरहान की तरफ देखा। ज़हे नसीब, उसने खुशी से कहा, कहाँ जाना है? दरिया की सैर करने चलेंगे। वाह कैसा हसीन नज़ारा होता है। जी चाहता है लहरों को देखते उम्र बीत जाए। हम दोनों तसव्वुर में दरिया किनारे पहुंच गए थे और ये ख्याल ना रहा था कि ताबिंदा तो इस नज़ारे का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जिसके बारे में हम बातें कर रहे थे, क्योंकि वो पैदाइशी अंधी थी। तभी एकदम मुझे बिजली का झटका लगा। मैंने अपनी बहन के चेहरे की तरफ निगाह की। उसके रुखसारों पर आंसू मोतियों की लड़ियों की मानित बह रहे थे। हमने फ़ौरन बात को पलट दिया कि हम ताबिंदा को वहाँ ले जाएंगे जहाँ अब्बू सैर कराने ले जाते थे। ये एक खूबसूरत पार्क था जहाँ फूलों की खुशबू से उसकी रूह मुअत्तर हो जाती थी और शफाफ फिज़ा उसे तरोताज़गी बख्शती थी। अगले दिन फरहान हमें लेने आया। मैं ड्राइंग रूम में थी कि अचानक हमारे बॉस आ गए।
हमने एक कारोबारी वफ्द को लेने एयरपोर्ट जाना था। मैं ड्राइंग रूम से बाहर आई तो फरहान ने कहा, अरे भाई तुम्हारे कारोबारी मेहमान कब जाएंगे? आज तो हमने ताबिंदा को सैर कराने ले जाना है। समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या जवाब दूं। तभी मैंने कहा, फरहान बॉस का काम करना है और भी 2-4 मेरे चीदा कोलीग जा रहे हैं, प्लीज़ तुम ताबिंदा को लेकर चले जाओ। वो तैयार बैठी इंतज़ार कर रही है। मुझ पर अचानक मसरूफियत आ पड़ी है। मैंने उससे माजरत की कि आज मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकूंगी। ताबिंदा को मायूस मत करना, वो बहुत दिनों से कहीं घूमने फिरने नहीं गई है। अगली बार इंशाल्लाह ज़रूर चलूंगी। फरहान मजबूर सा होकर बोला, क्या खबर वो तुम्हारे बगैर चलने पर राज़ी ना हो? ऐसा ही हुआ। जब ताबिंदा को मालूम हुआ कि मैं नहीं जा रही, उसने भी जाने से इनकार कर दिया। तब मैंने उसे कसम दी और मना लिया कि वो ज़रूर जाएगी, वरना फरहान नाराज़ हो जाएगा तो फिर कभी हमारे साथ सैर का प्रोग्राम नहीं बनाएगा। उसकी कोई बहन नहीं है, वो तुम्हें अपनी बहन समझता है। बिल आखिर समझाने पर वो उसके हमरा जाने पर राज़ी हो गई। ये लोग शाम 4 बजे निकले और रात 10 बजे को लौटे। मैंने तो दोनों पर एतबार किया, दिल में कोई बदगुमानी नहीं थी, मगर भला हो वक्त का कि जब चाहे हमसे बदला ले ले। उस रोज़ पहली बार फरहान और ताबिंदा को ये एहसास हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। फरहान को भी एहसास हुआ कि उसे मुझसे नहीं बल्कि शादी करनी चाहिए ताबिंदा से, क्योंकि मुझे फरहान की परवाह नहीं थी, जबकि उसे एक साथी की बेहद ज़रूरत थी जो उससे दिली लगाव रखता हो। एक अंधी बीवी के साथ जीवन बिताना अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने के मतरादिफ होता है। नाबीना औरत माँ बन जाए तो उसके बच्चों को पालने के लिए भी शौहर को भरपूर साथ देना पड़ता है। ये सब कुछ फरहान ने भी सोचा होगा, लेकिन मैं उसकी सोचों से कतई लाइल्म थी। वो कई दिन तक हमारे घर न आया। शायद कि उसके लिए एक मुश्किल फ़ैसला था। मैं हैरान थी कि जो रोज़ आता था आज उसे क्या हो गया है। खैरियत हो, अम्मी से कहूँगी चच्ची के घर जाकर पता करें। मैं तो ये सोचकर ऑफिस चली गई और वो सुबह के वक्त हमारे घर आ गया। मैं अभी रास्ते में थी कि याद आया मेरा मोबाइल फ़ोन तो घर पर रह गया है। फ़ोन लेने वापस पलटी, जूं ही कमरे में दाखिल हुई मेरे औसान ख़ता हो गए। वो ताबिंदा से कह रहा था, ताबिंदा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, दुर्दाना मेरे लिए मौजू नहीं है, उसकी तवज्जो किसी और तरफ है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए तो मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। या अल्लाह, फरहान ये मेरे बारे में क्या कह रहा है? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। समझ में ना आया कि क्या कहूँ। ये बात किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये बात मेरी माजूर और नाबीना बहन से मुतल्लिक थी। मैं उल्टे कदमों ऑफिस चली गई। उस रोज़ मैं काम ना कर सकी। बॉस ने कहा, दुर्दाना अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो घर चली जाइए। घर आकर रात भर मैं सोचती रही। कोताही तो मेरी तरफ से हुई थी, इसमें फरहान का कोई कसूर ना था। मैंने ही उसे 2 साल तक नज़रअंदाज किए रखा। वो तो मेरे लिए रोज़ आया करता था। बिलाखिर एक नाबीना लड़की की बेबसी उसके दिल पर असर कर गई, जो मेरी बहन और उसकी कज़न थी। वो मासूम थी। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी मंजिल फरहान होगा और फरहान उम्र भर के लिए उसका सहारा बनना चाहता था। ऐसा था तो आखिर इसमें क्या बुरा था, बल्कि बहुत अच्छा फ़ैसला था इसका। मैं फरहान से मोहब्बत करती थी, मगर ज़्यादा मोहब्बत मुझे अपनी बहन से थी, और मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। अगर मेरी नाबीना बहन को खुशियाँ मिल रही हैं, मुझे राह की दीवार बन जाने की बजाय आगे से हट जाना चाहिए, ख्वाह दिल को कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हो। मुझे हरगिज़ इसके रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहिए। मैंने जुर्रत करके फरहान से कह दिया कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, मगर मैं खफा नहीं, खुश हूँ। तुम मेरी बहन को सहारा देना चाहते हो। ताबिंदा की खातिर ये कुर्बानी मैं देने को तैयार हूँ। अगर वो आंखों के नूर से महरूम ना होती तो शायद मैं इस वक्त कुछ और सोच रही होती, लेकिन अब मैं यही चाहूँगी कि तुम उसकी मंजिल हो। मैं अम्मी को मना लूँगी, अपने वालिदैन को मनाना तुम्हारा काम है। वो मेरी इस बातें सुनकर गुमसुम रह गया। शायद उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर थपथपाया। फरहान, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी, महज बचपन की मंगनी के बंधन से मजबूर थी, वरना मैं अपने बॉस से शादी की ख्वाहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑफ़र कर चुके हैं। ऐसा मैंने झूठ कहा था, महज फरहान को गुमगू की कैफियत से निकालने की खातिर। तभी मैंने देखा उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई और वो पुरसकून हो गया। मैंने खुद उससे शादी से इनकार करके उसकी मुश्किल को आसान कर दिया था। यूँ ताबिंदा की ज़िंदगी में खुशियों के साथ ताबिंदगी आ गई। उसकी अंधेरी राहों में फरहान के साथ ने मोहब्बत के उजाले बखेर दिए।
वो दोनों खुश और खुरम ज़िंदगी बसर करने लगे और मैंने नौकरी को अपने गले का हार बना लिया ताकि वालदा बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ ना फैलाएं और ना किसी की मोहताज हों। ताबिंदा की भी बहुत मदद की, अल्लाह ने उसे औलाद दी। उसके दोनों बच्चों की परवरिश मैंने ही उसका साथ दिया, यहाँ तक कि वो बाशऊर हो गए, अपनी माँ की लाठी और आंखों की रोशनी बन गए। वो पुरसकून खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रही है, मगर मैं खाली दामन हूँ। बेसकून जीवन गुजारने के बावजूद खुश हूँ, क्योंकि जब मुझे ताबिंदा के बच्चे आंटी की बजाय अम्मी बुलाते हैं तो मेरे दिल को ठंडक मिलती है, जबकि वो ताबिंदा को अम्मा कहकर पुकारते हैं। मुझे फरहान से भी कोई शिकवा नहीं, बल्कि मैं उसकी एहसानमंद हूँ जिसने मेरी अंधी बहन का इंतखाब किया, वरना उपहार से ज़िंदगी तन्हा कैसे गुजारती। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।